آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 33 میں کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ تفصیل میں آپ کو ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں کہ مہر الدین اپنی بہن عالیہ کے ساتھ سردار خوشنود کے خیمے میں کھڑا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے تو مہر الدین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تیمور کی کوئی خبر ملی ہے، جس کے جواب میں وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہم ابھی تک تیمور صاحب کو تلاش نہیں کر سکے، ہم نے ان کو ہر طرف تلاش کیا ہے مگر ابھی تک نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی ان کی لاش۔ اسی دوران ساتھ والے خیمے سے سردار خوشنود اٹھ کر آتے ہیں۔ سردار خوشنود آ کر سپاہی سے تیمور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ ابھی تک ہم آقا تیمور کو تلاش نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر سردار خوشنود غم اور غصے کی وجہ سے اس سپاہی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا تمہیں یہ جچتا ہے کہ تم میرے بیٹے کی لاش جانوروں کے خوراک بننے کے لیے چھوڑاؤ؟ تم میرے بیٹے کو تلاش کیے بغیر واپس کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد سردار خوشنود کی طبیعت ایک دفعہ پھر خراب ہو جاتی ہے، جس پر عالیہ اور مہر الدین سردار خوشنود کو پکڑ کر ان کے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں کہ کوچبش بے شمار درگا قبیلے کے سپاہی لے کر حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں ہمیں اپنے آقا تیمور کا قاتل چاہیے، ہمیں انتقام لینا ہے۔ یہ دیکھ کر روشنی حائمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ درگا قبیلے کے سپاہی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں آ رہے ہیں۔ اس پر حائمہ خاتون روشنی اور سرجان خاتون سے کہتی ہیں کہ اپنی تلواریں اٹھاؤ اور ضرورت پڑنے پر اپنی حفاظت خود کرو۔ گندگدو بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اسی دوران جب درگا قبیلے کے سپاہی ایک پل سے گزر رہے ہوتے ہیں جو حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف جاتا ہے تو ان کے آگے طبیب عارف آ جاتے ہیں اور وہ ان سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں رک جاؤ، اپنی روایات کو مت بھولو، ہمارے درمیان کیے گئے معاہدے کو مت توڑو۔ اس پر کوچبش کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم نہیں رکیں گے، جب تک تمام غدار نہیں مر جاتے امن نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ طبیب عارف سے کہتا ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، جس پر طبیب عارف نہیں ہٹتے تو کوچبش ان کو دھکا دیتا ہوا آگے نکل جاتا ہے اور درگا قبیلے کے سپاہی بھی کوچبش کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ کوچبش کتے تیرا وقت قریب ہے۔ جب درگا قبیلے کے سپاہی حائمہ خاتون کے خیمے کے پاس پہنچتے ہیں تو کئی سپاہی اپنے لمبے لمبے نیزے ان کی طرف موڑ لیتے ہیں، جس پر درگا قبیلے کے سپاہی اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ حائمہ خاتون باہر آؤ، تمہیں بھی اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون خیمے سے باہر جانے لگی ہوتی ہیں تو گندگدو نے روک لیتا ہے۔ گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ امی جان کیا ہو گیا ہے، چند پاگلوں کی یہ اوقات نہیں کہ وہ آپ سے بات کریں، میں نے سپاہیوں کو بتا دیا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حائمہ خاتون گندگدو سے کہتی ہیں کہ میرا خون بہہ جائے لیکن میں اپنے ایک بھی سپاہی کا خون نہیں بہنے دوں گی۔ اس کے بعد حائمہ خاتون گندگدو کو راستے سے ہٹا کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہیں۔ جب گندگدو حائمہ خاتون کو باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حائمہ خاتون خیمے سے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا تم یہاں غداروں سے انتقام لینے آئے ہو یا خود غدار بننے آئے ہو؟ حائمہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ کتنے خون سے تمہاری پیاس بجھے گی، تم لوگوں نے ارطغرل کو غدار قرار دے دیا ہے اور اب اس کو جگہ جگہ تلاش کر رہے ہو۔ پھر حائمہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ اگر میری جان لینے سے تم لوگوں کی پیاس بجھتی ہے تو آؤ، میری جان تم پر حلال ہے۔ یہ سن کر گندگدو حائمہ خاتون سے کہتا ہے امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھر حائمہ خاتون اپنے خیمے کے آگے سے نیچے اتر کر درگا قبیلے کے سپاہیوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جب کوچبش یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ حائمہ خاتون سے کہتا ہے کہ ہم یہاں انصاف لینے آئے ہیں، جب سے لنگڑا ارطغرل اس قبیلے میں آیا ہے ہمارے بہت سے سپاہی شہید ہوئے ہیں، ہم نے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ پھر کوچبش زور زور سے نعرے لگاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں ہمارے آقا کا قاتل چاہیے، جس پر گندگدو کوچبش کی طرف دیکھ کر کہتا ہے غدار کتے۔ ناظرین اس صورتحال میں عالیہ اور مہر الدین وہاں آتے ہیں اور عالیہ کہتی ہے کہ تیمور میرا بیٹا تھا اور ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس کا انتقام نہ لے لیں، لیکن یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے، تم نے اپنے سرداروں کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ عالیہ درگا قبیلے کے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی حرکت کی تو تم میں اور تیمور کے قاتلوں میں کوئی فرق نہیں۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ارطغرل کے سپاہی ترگت دوحان اور بامسی غنی کی غار میں جاتے ہیں تو حلیمہ سلطان ان سے پوچھتی ہیں کہ ارطغرل کہاں ہے، جس پر بامسی ان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی قبیلے میں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان ان سے کہتی ہے کہ تم ان کو اکیلے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ پھر حلیمہ سلطان بہت غمگین ہو کر غار سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر دلی دمیر بھی حلیمہ سلطان کے پیچھے غار سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حلیمہ سلطان پریشان نہ ہو، ارطغرل وہی کرے گا جو ٹھیک ہوگا۔ جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ دلی دمیر کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ ارطغرل کو قتل کر دیں گے؟ اس پر دلی دمیر حلیمہ سلطان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان پریشان نہ ہو، ارطغرل نے یقیناً کچھ سوچ
कहा है, इसीलिए वो कबीले गया है। वो अपना काम करेगा और हम अपना काम करेंगे। हम कोनिया जाएंगे और सुल्तान से मिलेंगे और अर्तुगरुल साहब का पैगाम उन तक पहुंचाएंगे। फिर दिल्ली अमीर हलीमा सुल्तान से कहते हैं कि चलो हलीमा सुल्तान, कोनिया का सफर काफी लंबा है। जब दिल्ली अमीर हलीमा सुल्तान से ये बातें कर रहे होते हैं तो तंगूर झाड़ियों में छुपकर ये तमाम बातें सुन लेता है। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे दुर्गा कबीले के सिपाही हाइमा खातून के खेमे के सामने खड़े हैं, जबकि मेहरदीन उनसे कह रहा है अपनी तलवारें नीचे करो, इस मामले पर हम जिरगे में बात करेंगे। इस पर कोचबश कहता है कि हम इन गद्दारों से तंग आ चुके हैं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। नाजरीन, इसी दौरान वहाँ अर्तगल आता है। अर्तगल को देखकर कई सिपाही बहुत खुश होते हैं और हाइमा खातून भी बहुत खुश हो जाती हैं। जबकि दुर्गा कबीले के सिपाही नारे लगाते हैं कि गद्दार आ गया है, इसे फांसी दो। इसके बाद अर्तगल अपने घोड़े से उतरकर दुर्गा कबीले के सिपाहियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और कोचबश कहता है कि गद्दार। इसके बाद कोचबश अर्तगल पर हमला करता है, मगर अर्तगल बहुत ही फुर्ती के साथ उसके हाथ से तलवार ले लेता है और उसका सर कलम कर देता है। तो इस तरह गद्दार कोचबश का खात्मा हो जाता है। अर्तगल की हरकत देखकर गुंदुगदू और परेशान हो जाता है। फिर अर्तगल नारा लगाता है कि गद्दारों का ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम कई लोग भी ये नारा लगाते हैं कि गद्दारों का ठिकाना हमेशा की जहन्नुम है। इसी दौरान सरदार खुशनुद अर्तगल से कहते हैं कि तुम जालिम हो, तुम गद्दार हो, पहले तुमने मेरे बेटे का कत्ल किया और अब तुमने मेरे सिपाही को मार दिया, तुम लानती हो। इसी दौरान दुर्गा कबीले का एक सिपाही अर्तगल पर हमला करने लगा होता है और दूसरी तरफ सरदार खुशनुद भी अपना खंजर निकाल लेते हैं। अर्तगल जैसे ही सिपाही का हमला रोकने के लिए दूसरी तरफ मुड़ता है, सरदार खुशनुद अपना खंजर मारते हैं जो अर्तगल की बाजू पर लगकर हाइमा खातून को जाकर लगता है। ये देखकर अर्तगल एकदम हाइमा खातून की तरफ भागता है और गुंदुगदू सिपाही से कहता है कि तैयार खड़े हो जाओ। गुंदुगदू की ये बात सुनकर कई सिपाही हाइमा खातून और उनके घर वालों के आगे खड़े हो जाते हैं। हाइमा खातून जमीन पर गिर जाती हैं और अर्तगल और तबीब आरिफ उन्हें उनके खेमे में ले जाते हैं। गुंदुगदू गुस्से से सरदार खुशनुद से कहता है कि खुशनुद, याद रखना अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं इसका हिसाब लूंगा। इसके बाद आप देखें कि हाइमा खातून बहुत जख्मी हालत में है और वो अपने खेमे में लेटी है, जबकि अर्तगल भी उनके पास बैठा है। हाइमा खातून अर्तगल से कहती है कि मैंने मरने से पहले तुम्हें एक बार देख लिया, ये मेरे लिए काफी है। फिर हाइमा खातून बेहोश हो जाती हैं और तबीब आरिफ गुंदुगदू और अर्तगल से कहते हैं कि आप लोग बाहर जाएं। इसके बाद अर्तगल और गुंदुगदू खेमे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि अर्तगल के सिपाही दिल्ली अमीर और हलीमा सुल्तान गनी की गार में मौजूद हैं, जबकि शेख इब्न अरबी भी वहाँ मौजूद हैं। शेख इब्न अरबी अर्तगल के सिपाहियों से कहते हैं कि अर्तगल साहब ने जो इमानत छोड़ी है हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर दोहान, तुर्गत और बामसी हैरान हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कौन सी अमानत। इस पर शेख इब्न अरबी उनसे कहते हैं कि ये बात तुम्हें वहाँ जाकर पता चलेगी, तुम लोग जल्दी से तैयारी करो। इसके बाद वो सब लोग गार से बाहर आते हैं और शेख इब्न अरबी दिल्ली अमीर और हलीमा सुल्तान से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम लोग कोनिया के लिए निकल जाओ। जब शेख इब्न अरबी दिल्ली अमीर और हलीमा सुल्तान से बातें करते हैं तो तंगूर झाड़ियों में छुप कर ये सुन लेता है और इसके बाद वो नोयान के पड़ाव की तरफ चला जाता है। इसके बाद आप देखें कि नोयान अपने पड़ाव में अपने खेमे में मौजूद है और इसी दौरान उसके पास गद्दार कराबिक आता है और उससे कहता है कि मैं आपके लिए सादुद्दीन कोपे का सलाम लाया हूँ। फिर नोयान कहता है कि क्या उसको मजीद सोना चाहिए, उसका हर सलाम मुझे 10,000 सोने के सिक्कों में पड़ता है। इस पर गद्दार कराबिक कहता है कि नोयान एक बात याद रखो, तुम ये जमीनें हमारी मदद के बगैर फतह नहीं कर सकते। ये सुनकर नोयान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना खंजर निकाल कर कराबिक की गर्दन पर रख लेता है और कहता है क्या सादुद्दीन को और सोना चाहिए। जिस पर कराबिक कहता है नहीं, मैं बस आपको इतना बताने आया हूँ कि अर्तगल दोबारा कबीले में चला गया है और अर्तगल ने कबीले में जाकर कोचबश का सर कलम कर दिया है। जिस पर नोयान कराबिक से कहता है कि इस दफा मैंने तुम्हें अर्तगल पिंजरे में कैद करके दिया है, अगर तुम लोगों ने इस बार अपना काम पूरा ना किया तो मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि तबीब आरिफ हाइमा खातून का इलाज कर रहे हैं और वो उनकी पीठ से वो खंजर निकालते हैं जो सरदार खुशनुद ने हाइमा खातून को मारा था। जबकि दूसरे खेमे में गुंदुगदू अर्तगल को गुस्सा कर रहा है और उसे कहता है मैं तुम्हें तैमूर के कत्ल के इल्जाम से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुमने कोशबश को भी सबके सामने कत्ल कर दिया। इस पर अर्तगल कहता है भाई मैंने वही किया जो ठीक था। इस पर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है अर्तगल खामोश हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, कबीले में खून रेजी हो सकती है। फिर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है कि तैमूर की लाश अभी तक नहीं मिली। जिस पर अर्तगल गुंदुगदू से कहता है भाई तैमूर जिंदा है। अर्तगल की बात सुनकर गुंदुगदू हैरान हो जाता है और अर्तगल से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर अर्तगल कहता है भाई मैं सच कह रहा हूँ, तैमूर जिंदा है। गुंदुगदू पूछता है कि कहाँ है तैमूर। इस पर अर्तगल उससे कहता है कि भाई
फिक्र ना करें, तैमूर महफूज हाथों में है। इसके बाद आप देखें कि शेख इब्न अल-अरबी तुर्गत, दोहान और बामसी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ शेख इब्न अल-अरबी का एक दरवेश तैमूर का इलाज कर रहा होता है। जब दोहान, तुर्गत और बामसी तैमूर को जिंदा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। दोहान कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इसके बच जाने की वजह से मुझे इतनी खुशी होगी। तुर्गत शेख इब्न अल-अरबी से पूछता है कि आपको तैमूर कहाँ से मिला, जिस पर शेख इब्न अल-अरबी कहते हैं कि तैमूर मुझे नहीं मिला बल्कि अर्तगल ने इसे ढूंढा है। जब तैमूर अर्तगल को मिला तो मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, फिर मैंने और अर्तगल ने तैमूर को यहाँ छुपा दिया। अगर हम तैमूर को जिंदा बचा लेते हैं तो अर्तगल भी बच जाएगा। फिर शेख इब्न अल-अरबी उनसे कहते हैं कि चलो जल्दी से इसे उठाओ और गनी की गार में ले जाओ। इस पर अर्तगल के सिपाही खुशी खुशी तैमूर को उठाते हैं और गनी की गार की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दूसरी जानिब अर्तगल भी गुंदुगदू को ये सारी बात बताता है, जिस पर गुंदुगदू अर्तगल से कहता है जितनी जल्दी हो सके तैमूर को शिफायाब होकर कबीले आना होगा। इसी दौरान सिलजान और रोशनी भी उस खेमे में दाखिल होती हैं। गुंदुगदू रोशनी से कहता है अगर तुम तैमूर को अर्तगल के बारे में ना बताती तो ये सब कुछ ना होता। ये सुनकर सिलजान खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से रोशनी को देखती है और कहती है क्या तुमने हमारी जासूसी की है, क्या तुमने तैमूर को अर्तगल के बारे में बताया है। जिस पर रोशनी कहती है कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। इस पर अर्तगल रोशनी से कहता है कि रोशनी तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सुनकर रोशनी अर्तगल से कहती है आपकी बीवी यहाँ बहुत से मसाइल लेकर आई, आपकी बीवी के आने से पहले हम सब अमन से रहते थे। रोशनी की यह बात सुनकर अर्तगल को बहुत गुस्सा आता है और वो रोशनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गुंदुगदू उसे रोक लेता है और सिलजान खातून गुस्से से रोशनी को पकड़कर पीछे करती हैं और कहती हैं तैमूर की तरह तुम भी बेवकूफ हो। इसके बाद अर्तगल और गुंदुगदू तबीब आरिफ के पास जाते हैं। तबीब आरिफ उनसे कहते हैं कि आप वापस कबीले में क्यों आए हैं, आपने अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी है। जिसके जवाब में अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि मैं दोनों कबीलों के दरमियान जंग रोकने के लिए आया हूँ। इसके बाद अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि तैमूर जिंदा है। ये सुनकर तबीब आरिफ हैरान हो जाते हैं और अर्तगल उनको बताता है कि तैमूर गनी की गार में है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फिर अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है कि शेख इब्न अल-अरबी और गनी तैमूर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तैमूर को आपकी जरूरत है। इस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द गनी की गार में जाऊंगा और तैमूर को देखूंगा। नाजरीन, इस किस्त के आखिर में आप देखें कि नोयान अपने पड़ाव में बैठा हुआ है और इसी दौरान उसके पास तंगूत आता है और उससे कहता है कि हलीमा सुल्तान और दिली दमीर कोनिया जा रहे हैं। ये सुनकर नोयान तंगूत से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से पता चला, जिस पर तंगूत उसे कोई जवाब नहीं देता। इस पर नोयान तंगूत को नीचे गिरा लेता है और उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और उसे कहता है तंगूत तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। इस पर तंगूत कहता है कि कबीले के पास मौजूद हमारे एक सिपाही ने दिली दमीर और हलीमा सुल्तान को कबीले से रवाना होते हुए देखा है। फिर नोयान उससे पूछता है तुम्हें ये किसने कहा है कि वो कोनिया ही जा रहे हैं। इस पर तंगूत कहता है कि हमारे सिपाही ने उनके पास वो दस्तावेजात देखी हैं जो अताबे उर्तकुश के पास थी। इस पर नोयान तंगूत से कहता है कि तुम फौरन उनके पीछे जाओ और वो दस्तावेजात जो अताबे उर्तकुश ने उनको दी